अगर आपको लगता है कि कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है इसलिए बीटेक नहीं करना है तो आप गलत सोच रहे हैं। कोडिंग की तो आज जरूरत ही नहीं है। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इन सेल्फ। कुछ को जॉब करना है, कुछ को आइडिया है, उनको कुछ क्रिएट करना है। आपका रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं होगा इफ यू डोंट हैव द गिटहब प्रोफाइल एंड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है। स्टार्ट कोडिंग इन द फर्स्ट ईयर। जैसा आपने सुना होगा कि एआई बहुत दुनिया के जॉब खत्म कर देगा, क्योंकि एआई इज एवरीवेयर। Coding or communication, what is more important? 50-50. Hello everyone and welcome to this special podcast by Career Point University Kota. Today we are going to talk about the future of AI, technology, innovation and how Career Point University is developing the future and career of student from Career Point University Kota. And for this conversation, we have a very special guest with us, Mr. Pramod Maheshwari sir, Chancellor of Career Point University, Kota, Rajasthan and Hamirpur, Himachal Pradesh. Mr. Pramod Maheshwari sir is BTech from IIT Delhi and OPM from Harvard Business School, USA. With more than 35 years of educational experience, he has guided lakhs of students and made a successful journey and career of them. So welcome sir in this podcast. Yeah, thank you very much. Pleasure to be in your podcast. Thank you so much. So sir, can you tell me that Career Point University is being called an AI first university? What does this vision actually mean for students? So lovely, जैसे आप बोलते हैं कि Career Point University is AI first university. So why AI first? AI first का मतलब होता है कि whatever you do, whether you study commerce, you study business management, you study arts, physiotherapy, applied health sciences, even BTech, MCA, BCA, you do whatever. AI is everywhere. And therefore it is very, very important for a student to learn AI irrespective which stream they are choosing. Yes, true. And that's what exactly we are doing at Career Point University, wherein we have modified our curriculum and introduced relevant AI courses in each stream. तो अगर आप हमारे यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ में भी हम AI कैसे यूज़ होता है उसको पढ़ा रहे हैं। अगर आप MBA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं तो उसमें AI को किस तरह से यूज़ करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में, HR में, स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग में आप AI को यूज़ करें। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर में भी आप AI कैसे यूज़ करेंगे। सो नाउ एवरीवेयर AI इज़ बीइंग यूज्ड। और कोई भी स्टूडेंट अगर आज AI नहीं पढ़ रहा है तो वो आने वाले सालों में ऑब्सलीट हो जाएगा। एंड दैट्स वाई वी सेट आवर मिशन एंड विजन टू मेक Career Point University as AI first university. And that's why we are changing the curriculum, making it relevant and making sure that everybody understands AI and its application in the stream chosen by them. So that's why it is AI first university. Okay, sir. So, sir, I want to know that today AI is changing every industry. Why did Career Point University decide to build AI-focused BTech program? देखिए, जैसे भी मैं बोल रहा था कि दुनिया में हर चीज़ चेंज हो रही है. So industry is changing, corporate world is changing, the way we are working is changing, and therefore computer science is also changing. Yes. Now traditional computer science जो होता है वो फोकस करता है सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाने पर, बट AI का जाना बहुत ज़रूरी है. जो अभी हमने बात करी कि हर फील्ड में AI होगा तो उसको AI को बनाएगा कौन, उस AI को डेवलप कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पीपल आर यूजर्स, बट देयर हैज़ टू बी समवन हु एक्चुअली डिज़ाइन AI बेस्ड सॉल्यूशंस, AI relevant, something which can be utilized in different part of the life. उसके लिए इंजीनियर है, और इंजीनियरिंग अभी तक कंप्यूटर साइंस करते थे, हमने उसको BTech AI ML बनाया है. तो उसमें हम लोगों को ये समझा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं राइट फ्रॉम द डे वन हाउ AI इज़ बीइंग डेवलप्ड, हाउ AI बीइंग यूज्ड इन द रियल लाइफ to solve the complex problems. And that's why the BTech program is focusing on AI ML, and that's why we started this one. Okay, sir. So, can you tell me, sir, that how is CPU's BTech program different from traditional engineering colleges? जो BTech AI ML प्रोग्राम है, या हमारे पास BTech फुल स्टैक प्रोग्राम भी है, या हमारे पास BTech साइबर सिक्योरिटी भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, ये प्रोग्राम ट्रेडिशनल जो BTech होता है उससे बिल्कुल अलग है. अगर आप कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का BTech प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर आप देखें जो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम होता है उसमें 4 साल तक स्टूडेंट को थ्योरी पढ़ाई जाती है, परंतु वो जॉब रेडी नहीं होता या कॉर्पोरेट रेडी नहीं होता, तो 4 साल उसके वेस्ट हो जाते हैं. आज वर्ल्ड बहुत फास्ट मूव कर रहा है. अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद सोचें कि हाँ मैं कुछ स्किल या ट्रेनिंग ले लूँ और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए या मैं कुछ कर लूँ, देन यू आर टू लेट, बिकॉज पीछे से नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं. Therefore 4 years you are spending in the university should be utilized to best, and 4 year learning in university
शुड बी 4 year वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब कोई नहीं दे रहा है। Yes. अगर आप सोचेंगे कि 4 साल बाद मैं ग्रेजुएट होऊंगा और एक एंट्री लेवल जॉब में चला जाऊंगा, फिर धीरे धीरे बढ़कर कोई बड़ा जॉब में ले लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वो एंट्री लेवल का काम तो आपको यूनिवर्सिटी में ही करना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर द कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी बीटेक प्रोग्राम इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बीटेक प्रोग्राम। आवर स्टूडेंट स्टार्ट्स कोडिंग फ्रॉम डे वन। इट इज़ फोकस मोर ऑन अप्लाइड एप्लीकेशंस। आपको शुरू से ही प्रोजेक्ट बनाने हैं। पूरे 4 साल के प्रोग्राम में आप 12 करीब प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपको रियल प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो आप जब रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, देन यू रियली अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। और वो जो 4 साल आप कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी निकालेंगे, वो 4 साल वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होगा। एंड देयरफॉर बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, you have work experience of 4 years, and therefore you have added advantage on rest of the people who are coming from the traditional BTech program. ये पूरा करिकुलम ने काफ़ी सोचा, काफ़ी दिमाग लगाया कि किस तरीके से स्टूडेंट के 4 साल सिर्फ थ्योरी में न लगाए जाए, बल्कि उसको वर्क एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट करा जाए। एंड दैट्स वेयर BTech program of Career Point University is very very different from, and very effective rather, from the rest of the BTech program offered by any other university. Okay, very well said, sir. I just also wanted to know that at CPU, students start building projects from day one, as I have also been into Career Point University. So why is this approach important? If you are studying in the university and learning something, then learning is not sufficient. Application is very important. If you are not able to apply what you have learned, if you are not able to execute something which you have learned, that learning is useless. आज AI के ज़माने में लर्निंग सबके पास है। आप क्लाउड पर जाइए, चैट GPT पे जाइए, आपको जो चाहिए सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो नॉलेज का तो कोई एडवांटेज है ही नहीं आपके पास। देयरफॉर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्किल 2 तरह की होती है। एक स्किल होती है कि जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, एक स्किल है नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, उसको डिप्लॉय करना और सॉल्यूशंस बनाना। सो नॉलेज ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी देती है, बट एट द सेम टाइम डिप्लॉयमेंट ऑफ द नॉलेज एज अ प्रोजेक्ट, solving real life problems is very very important. And therefore प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है, क्योंकि थ्योरी हो जाती है, नंबर पे फोकस स्टूडेंट रहता है, मार्क्स मिल जाते हैं, अगली क्लास में चला जाता है, परंतु उसको अप्लाई करना नहीं आता। एंड दैट्स वाई हमने हमारे पूरे प्रोग्राम में प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस करा है कि आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, जो लाइव प्रोजेक्ट जिनको बोलते हैं, वो बनाने हैं। That is a very good approach. I hope हमें भी ये गाइडेंस मिलता है at our टाइम when जब हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी इज़ दैट कैन यू एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स ग्रो ईयर बाय ईयर ड्यूरिंग दिस बीटेक जर्नी एट करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी? तो देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट क्लास 12 से ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी में आता है, स्पेसिफिकली व्हेन दे जॉइन द बीटेक प्रोग्राम, ऑब्वियसली दे हैव टू लर्न द सब्जेक्ट ऑल्सो, दे हैव टू master the subject also, and they have to make the project also. So we have divided the 4 year into 4 stages of the growth. First we call foundation. So like when you are in first year, we focus on your programming skill. Okay. आप अच्छा प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए. We focus on your critical thinking and problem solving skill, which we call data structure. So we focus on data structure. When you move to the second year, we guide students to master advanced data structure problem, ताकि आपका जो एल्गोरिथम है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है, वो बहुत अच्छी हो जाएं अलॉन्ग विद योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग रियल प्रोजेक्ट्स। एंड व्हेन यू मूव टू द थर्ड ईयर, देन वी स्टार्ट बिल्डिंग योर AI स्किल्स, क्योंकि सेकेंड ईयर में हम AI स्किल्स के फाउंडेशंस को, फंडामेंटल्स को पढ़ा देते हैं, और फिर जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो हम एडवांस AI स्किल्स आपको समझाते हैं। एंड व्हेन यू आर इन द फाइनल ईयर, यू वर्क रियली ऑन अ लाइव मेगा प्रोजेक्ट। सो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, you have gone through foundation to advanced level to super advanced level to deployment. Okay. And that's why I said कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी पे 4 साल का बीटेक प्रोग्राम एक 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर, लर्निंग, एनहांसिंग योर स्किल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग दो स्किल्स इन द रियल लाइफ सिचुएशन, वो सभी आपको सिखाया जाता है। एंड दैट्स द जर्नी ऑफ द स्टूडेंट एट कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। So sir, I have one more question, that how does CPU student ensure that they stay updated with the latest industry trends and technologies? See, the world is changing very fast. Yes. Within a week's time, everything gets changed nowadays. Like the way the AI explosion is happening in the world, what you are learning today become obsolete within 7 days. मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा, और सबके साथ हो रहा होगा। आज आप कोई AI का कोई सोल्यूशन देखिए, 7 दिन बाद नया AI का सोल्यूशन आ जाता है। नाउ फॉर दिस यू नीड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, लाइक द पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग इन द इंडस्ट्री एनवायरनमेंट and working in this space. So what we have done, we have
team of advisors with us, and these team of advisors are expert in their respective fields. So we have like Dr. Punish Sharma with us. He's head of Hewlett Packard. We have AI experts with us who are developing and working in AI environment. So those people who works in industry are always remain updated and always ahead of the curve of knowing what's happening in the world. And if you have those people as your advisor and they contribute in curriculum, conduct master classes, help a student to get knowledge about various initiatives in the world, so students remain updated. So by having industry advisors on board for this program, we are ensuring that a student remain updated with latest happening in the AI world. Okay, sir. I also want to know what kind of real projects will students build during their classes in their college life? So see, the students at Career Point University works on the real life problems. So what we have done in the university, lot of activities are being done by faculty members, lot of services are being offered to the students. So we have asked our faculty members that you list down what are the things you are doing repeatedly and which can be automated or enhanced by using automation technology or AI. And we give those kind of project to the students. Rather than giving them, some textbook kind of an assignment, we give them an assignment based on the real life problem faced by the faculty members. And not only the university, even we go out and ask people what kind of challenges you are facing. If we do something for you, will it enhance your efficiency? Will it make the entire process efficient? If they say yes, we take the problem statement and we give it to the student as an assignment. तो पूरा जो असाइनमेंट का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का है. छोटी छोटी प्रॉब्लम को शुरुआत में सोल्व कराते हैं एंड देन वी टेक द स्टूडेंट टू द नेक्स्ट लेवल. हम उनसे जैसे मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम बोलते हैं कि आप नेटफ्लिक्स का रिप्लिका बनाइए. सो यू अंडरस्टैंड हाउ द नेटफ्लिक्स इज वर्किंग. उसमें चाहे आपका यूज़र मैनेजमेंट है, एक्सेस है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेडिक्टिव इंटरेस्ट दिखाना है कि भाई आपने ये मूवी देखा है तो ये वाला आप देख सकते हो, आपका इंटरेस्ट ऐसा है. तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं जो रिप्लिका होते हैं, जिनसे आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का समझ आता है और फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी से लेकर उनको एज असाइनमेंट करते हैं. एंड दैट्स हाउ द स्टूडेंट लर्न रियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. Okay, sir. So I also want to know, sir, that how important are GitHub portfolios and deployed projects for placement today? See, GitHub portfolio deployed project is extremely important for any student to get a job in best of the company. So reason being, if you apply to a company, let's say Google or Microsoft or to any large corporate, when you send your resume, they look at your GitHub profile. Because GitHub profile में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने ओपन सोर्स करके डाले हुए हैं, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए. और अगर डिप्लॉयड हैं तो वो देख लेते हैं कि आप किस तरह का काम कर चुके हैं. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग. आपका रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं होगा इफ़ यू डोंट हैव द GitHub प्रोफाइल एंड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट. वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे, अब आपको कितना भी आता होगा. एंड दैट्स फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स बेसिक है. तो जैसे एक रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूमे में भी आपको अपना प्रोफाइल के बारे में लिखना ही पड़ेगा. एंड दैट्स वाई all the students should have their GitHub profile and should post all the project they have done on the GitHub profile, also share the deployed project details and etc. And that's a filter which everybody use in the world to screen the student to give them a job, and that's very important. Okay, sir. Another thing I want to know that Career Point University talks a lot about industry ready learning. So what exactly does industry ready mean? Industry ready learning means the day you join the industry, you should be productive. Okay. Like if you are joining a corporate and then corporate has to give you training for a month or 3 months or 6 months, that means you are a cost to the company. You are not productive. If you are getting let's say salary for 3 months during which you are being trained, that means they are incurring cost on you, and nobody likes this. Like the world is changing very fast. Everything is going at rapid pace. Like time ही नहीं है किसी के पास कि आपको लाकर इंडस्ट्री में लाकर ट्रेन करा जाए. They will prefer to hire the trained people. ट्रेनिंग करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है. And that's for industry ready का मतलब है कि by the time you graduate from the university, you should be productive to the industry, and that's called industry ready. And that can be achieved only through intensive training.
एंड दैट ट्रेनिंग शुड हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नॉट द थ्योरी वन. आपने कितने एग्जाम कराया, उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे, उसमें स्टूडेंट का A+ ग्रेड आया कि है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. कितने प्रोजेक्ट करे, कितने डिप्लॉय करे, उसको आपको डिप्लॉय करना आता है कि नहीं आता है, वो ज़्यादा मैटर करता है. एंड दैट्स वाई वी हैव द ब्लेंडेड अप्रोच. वाइल टीचिंग थ्योरी वी फोकस अ लॉट ऑन द प्रोजेक्ट्स. अगर आपने प्रोजेक्ट करे तो आप इंडस्ट्री रेडी हैं. Okay, sir. Sir, also I want to know that how are students prepared for internships from the second year itself? If you really want to take internship from second year and specifically the good company, the only way, start coding in the first year, start developing projects, have your GitHub profile, post your projects and codes on GitHub, and reach out to the people who are working in the industry and share your experience to them that this is what I have done. अगर आप ये सब करेंगे तो आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं. एंड वी ऑल्सो गाइड स्टूडेंट्स. सो व्हाट आई शेयर विद यू एग्जैक्टली वी डू विद आवर स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर, एंड वी गाइड देम कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, ताकि उनको इंटर्नशिप मिले, सेकेंड ईयर में ही मिले. वो कोशिश करते हैं. Okay, sir. How does CPU help students prepare for coding interviews, DSA and technical rounds? सी जैसे अभी मैंने आपसे बोला था कि अगर आपका रिज्यूमे प्रॉपर नहीं है, स्क्रीन नहीं हुआ, तो आपको वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे. सो दैट्स वाई योर गिटहब प्रोफाइल प्रोजेक्ट इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार आपका अगर स्क्रीन हो जाता है कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिज्यूमे, तो नेक्स्ट स्टेज आती है टेक्निकल राउंड्स, वेयर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स. तो हम DSA के लिए बहुत स्पेशल फोकस काम करते हैं. फर्स्ट ईयर से हम DSA पढ़ाना शुरू करते हैं, उसको ओवर द 2 ईयर स्प्रेड करते हैं. शुरू में हम बेसिक्स पढ़ाते हैं ताकि बेसिक प्रैक्टिस हो. सेकेंड ईयर में एडवांस DSA पढ़ाते हैं. इट इज़ नॉट DSA वी कवर ओनली इन अ सेमेस्टर, वी स्प्रेड इट ओवर 2 ईयर्स ताकि सस्टेन प्रैक्टिस हो. DSA इज लाइक मैथमेटिक्स, मोर यू प्रैक्टिस मोर कमांड यू हैव. DSA में भी ऐसा होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, DSA को हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ाते हैं. हमारे पास प्रोफेसर प्रैक्टिस है जो IIT BHU से ग्रेजुएट हैं और पहले IBM में जॉब करते थे, और अभी एक कंपनी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, द मास्टर ऑफ AI ML एंड DSA. हम जो DSA उनसे पढ़वाते हैं, तो पहले वो पढ़ाते हैं. पढ़ाने का अप्रोच हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है. एंड ड्यूरिंग समर वी कंडक्ट प्रैक्टिस कैंप. सो चाहे लीड कोड हुआ, हैकर्स रन हुआ, इस तरह के प्लेटफॉर्म है, उन पर ले जाके बच्चों को कम्पिटिटिव कोचिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग रादर देन टीचिंग. उनको ट्रेन करते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं, रिग्रेस मेहनत कराते हैं, तो वो फिर इस राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं. Okay, so well, that is a very helpful approach for students. Now I want to know, sir, many students fear coding in the beginning, as you said that is the first thing they have to do when they are, they want internships in second year. But for most of the students, that is very difficult in the beginning. So what would you say to the beginners who want to join BTech? See, कोडिंग की तो आज ज़रूरत ही नहीं है. अगर आपको लगता है कि कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है इसलिए बीटेक नहीं करना है, तो आप गलत सोच रहे हैं. कोडिंग तो आजकल AI करता है. इम्पोर्टेंट क्या है, कोड समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए. आज कोड कोई नहीं लिख रहा है. अगर आप गूगल में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जाके बात करेंगे, वो भी आज कोड उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही लिख रहा है, AI ही लिख रहा है. बट दे नो हाउ दैट कोड इज़ बीइंग रिटन, दे नो द लॉजिक बिहाइंड इट, दे नो द सिस्टम डिज़ाइन. तो आज ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका लॉजिक बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, या DSA बोल दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं. उसकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए. लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो कोड AI लिखेगा उसको पढ़ना आपको है, उसमें क्या सही है क्या गलत तो समझना आपको है, लिखना AI को है. एंड देखो, अगर आपको डर लगता है कि कोडिंग से बहुत डर लगता है तो हम क्यों बीटेक करें, तो गलत है. हाँ, आपका लॉजिक अच्छा है, आप लॉजिकली सोच सकते हैं, आप कोड को पढ़ सकते हैं, और बेसिक प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ेगी, तो रेस्ट इज़ सिंपल. कोई बीटेक CS करने में कोई मुश्किल नहीं है. Okay, well said, sir. So I want to know that how important are hackathons, coding contest and competitions in a student's career growth? That's very important, very very important. जितने भी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू विल एग्जिबिट योर स्किल्स. बहुत पर्पस है उसके. आपने क्या सीखा उसका आपको टेस्ट हो जाएगा. जैसे कोचिंग में टेस्ट सीरीज चलती है या कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज चलती है, उस तरह से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सोल्व करा जाता है. साथ में आपकी प्रोफाइल बनती है कि आपने किस किस तरह के हैकाथन में पार्टिसिपेट करा हुआ, आप कहाँ पर गए. तो दैट प्रोफाइल हेल्प्स यू टू बी रिलेवेंट टू द इंडस्ट्री.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैकाथॉन में, कोडिंग कंपटीशन में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए. So, sir, I want to know that CP also focuses on entrepreneurship and startups. So, how are students encouraged to innovate and build their own ideas or startups? एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक इन सेल्फ. कुछ को जॉब करना है, कुछ को आइडिया है और उनको कुछ क्रिएट करना है. तो कैरियर पॉइंट में एक इकोसिस्टम है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि हम जब प्रोजेक्ट देते हैं स्टूडेंट्स को तो हम बोलते हैं कि कोई कम्युनिटी में जो कोई रियल चैलेंज है उसका हम असाइनमेंट देते हैं. बट एट द सेम टाइम वी आस्क स्टूडेंट कि इफ़ यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड दैट कैन बी कंसिडर एज ए प्रोजेक्ट, कि आप उसे बना लीजिए. सो इफ़ यू हैव एन आइडिया कि मुझे ये करना लाइफ में, आप उसको एज ए प्रोजेक्ट शुरू करिए. वी एनकरेज यू टू डू दैट प्रोजेक्ट. और अगर वो प्रोजेक्ट आपका आगे सही चलता है और आपको लगता है कि येस इट कैन बी डिज़ाइन इनटू और इट कैन बी डेवलप्ड एज एन स्टार्टअप और बिग स्टार्टअप, तो आप उसको आगे परस्यू कर सकते हैं. उसके लिए वी प्रोवाइड द मेंटरशिप, वी प्रोवाइड यू गाइडेंस, we provide you financial support, and we provide the entire ecosystem of helping you to get ahead in the life as a startup. तो हमारा बहुत फोकस है स्टूडेंट्स के साथ कि अगर आप कोई आइडिया है, कुछ दिमाग में आपके ऐसा कोई सोच है कि जिसको एक स्टार्टअप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टेक इट एज एन असाइनमेंट. Okay. So, sir, just like you said that Career Point University is quite supportive to students in all the aspect. I want to know from you that how Career Point University contributes to the student from the area of who are from the Hindi medium background or who are not much familiar with English as a language. आज लैंग्वेज तो बैरियर ही नहीं रहा है. आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी तो आप देखिए ए का ज़माना ये होगा कि अगर आप मैं आज चाइना जाता हूँ तो मुझे मैंड्रिन आने की ज़रूरत नहीं है. मैं अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश छोड़िए, मैं हिंदी में अपना मोबाइल पर बोल सकता हूँ और ट्रांसलेट करके मैंड्रिन में उसको बता सकता हूँ. मैंड्रिन में जवाब जाएगा, ट्रांसलेट करके मुझे बता. सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. हिंदी मीडियम के हों चाहे किसी भी मीडियम के हों, लैंग्वेज तो बहुत, लैंग्वेज इरेलेवेंट है. तो आई गेस हिंदी मीडियम के लिए भी बीटेक करना उतना ही आसान है और करते भी आ रहे हैं लोग. तो अगर कोई हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है तो उसको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए. और अब सब कुछ हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, हर चीज़ ट्रांसलेशन हो रहा है. आज अगर आप कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप चैट जीपीटी पे जाइए, आपने क्वेश्चन पूछा, आपको इंग्लिश में आंसर दिया, आप बोलिए हिंदी में दीजिए, हिंदी में दे देगा. आप बोल दीजिए उसको कि आप इंग्लिश में दीजिए, तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश में दे देगा. इनफैक्ट छोड़िए, आप पढ़ नहीं सकते, आप बोल के सुनाइए तो बोल के सुना देगा. तो दैट हैज़ चेंज द एंटायर वर्ल्ड. तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. Okay, sir. So, can you tell me, sir, that can students at Career Point University work on AI startups or product ideas during college? Yes, many students do have ideas and they start working on AI based solutions. तो वो करते हैं. अभी क्योंकि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है फील्ड, तो कुछ स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ लोग बनाते हैं. पास्ट में कुछ सॉल्यूशंस लोगों ने बनाए जो AI बेस्ड हैं, जिसमें AI एजेंट्स उन्होंने बनाए, कुछ ऑटोमेशन एजेंट्स बनाए, कुछ नए मॉडल को ट्रेन करने का कोशिश करा है जो कि अपना में काफ़ी एडवांस होता है. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स बनाते रहें और हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे तो बहुत बनाएंगे. Oh, good to know, sir. So, I know that nowadays companies need problem solvers, not just degree holders. So, how is CPU developing that mindset in students? See, we've been conducting regular seminar sessions, interactive session with the experts, industry experts of the student, and trying to explain to the student that degree is obviously important, but not. We are trying to explain to the student that degree is important, but alone degree will not get you a job. Alone degree will not get you success. उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाट ग्रेजुअल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा है क्योंकि वो हिस्टोरिकली चला आ रहा है 50-60 सालों से कि डिग्री होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए, डिग्री से ये होगा, डिग्री से वो होगा. आज गूगल या इस तरह की कंपनीज ने तो डिग्री का रिलेवेंस ही ख़त्म कर दिया. बोलते हैं आपके पास स्किल आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए. तो अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को, और हम लगातार इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें एंडोर्समेंट होता है इस बात का, और स्टूडेंट को समझ में आता है कि हमें कहाँ फोकस करना है. सो वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स टू एक्सप्लेन स्टूडेंट that degree is important, but it is not sufficient. You need to understand that you should have skills to deploy your knowledge to solve the real life problems. और students कर रहे हैं वो. Okay, sir. So, how does Career Point University balance technical skills with communication skills and personality development? The communication skill and personal development side is also very important because you know everything, but you can't express yourself. You can't, face people.
तो आप अपनी बात को बताओगे कैसे? और उसके लिए वी हैव अ वेरी डिफरेंट इकोसिस्टम एट यूनिवर्सिटी. वी कंडक्ट लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ वेरी अलाउ स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दोज एक्टिविटीज़. सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर बीइंग डन आउटसाइड द क्लासरूम एंड दोज एक्टिविटीज़ प्राइमरली फोकसेस ऑन स्टूडेंट स्किल्स, मे बी communication skills, maybe time management, stress management, event management and all those kind of things. तो जब आप बाहर कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली स्किल्स बिल्ड होना शुरू हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कंडक्ट एक्सपर्ट सेशन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो. सो वी मेक द fair balance between these two. Okay, sir. Now, what are the biggest opportunities for students who are in AI and technology over the next few years? दुनिया एक ही है, आने वाली दुनिया AI की ही है. अगर आपने AI नहीं सीखा, आपको AI नहीं आता, तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे. फॉरगेट अबाउट द स्टूडेंट्स. माई सेल्फ फॉर लास्ट 1 year आई एम पुटिंग almost 1 hour to 2 hour every day on learning AI. And I am not computer science engineer, I am a textile engineer. But I am learning how to work with AI. पहले छोटे छोटे काम करता था, क्लाउड को कैसे यूज़ करते हैं. नाउ आई स्टार्टेड मेकिंग एजेंट, ऑटोमेशन. अगर आप टेक्नोलॉजी में अंदर जाएंगे तो MCP वगैरह होते हैं, उनको मैंने समझना शुरू कर दिया. मोस्ट रिसेंटली लास्ट वीक आई मेड चैट एजेंट, जो आप जाकर मेरी वेबसाइट पे जाकर उससे बात कर सकते हैं, वो आपका अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स. सो AI इज़ एवरीवेयर एंड Yes. अगर आप AI नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे. So AI is very important for everyone. That's why in the beginning I said Career Point University is introducing AI relevant curriculum. That's why I said in the beginning that Career Point University has introduced AI in curriculum of every stream, not only in BTech but everywhere: commerce, law, agriculture, pharmacy, health, allied sciences, etc. क्योंकि AI is everywhere. True, well said, sir. So, what kind of careers can students build after completing this AI-focused BTech program? बहुत सारे. जैसे आपने सुना होगा कि AI बहुत दुनिया की जॉब ख़त्म कर देगा. Yes. यस कर देगा, बट एट द सेम टाइम उससे 10 गुने ज़्यादा जॉब नए क्रिएट भी करेगा. क्योंकि जो चीज़ पहले नॉन AI तरीके से होती थी वो अब AI के तरीके से होगी. और अब कैपेसिटी बढ़ गई लोगों की. जो काम मान लीजिए पहले एक मुंशी जी कागज़ पे खाता बही लिखते थे, कंप्यूटराइजेशन हुआ तो मुंशी जी ऑब्सोलीट हुए, परंतु कंप्यूटराइजेशन से अकाउंटिंग का बहुत काम बढ़ गया. लोग एफिशिएंट हो गए. ऐसा नहीं अकाउंटेंट ख़त्म हो गए, नए तरह के अकाउंटेंट बने जिनको कंप्यूटर पे टेली यूज़ करना या उस तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता था. सिमिलरली वही चेंज अब हो रहा है. अब नए AI बेस्ड सॉल्यूशंस आ रहे हैं. वो उन सॉल्यूशंस को ख़त्म कर देंगे जो भी एग्जिस्ट करते हैं, परंतु उस तरह के नए ऐसे सॉल्यूशंस एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जो AI बेस्ड होगी. और आप सोचिए कि जब मुंशी जी काम करते थे और उसके बाद कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का कितना बड़ा बूम आया, कितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी कंप्यूटर में. वही काम अब होगा कि वो कंप्यूटर के जो सिंपल प्रोग्राम हटकर जब AI आएगा तो AI के कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. उसमें AI के जो मॉडल बनाते हैं वहाँ से लेकर AI के यूज़र तक पूरी वैल्यू चेन में 10x जॉब आएंगे. बस आपको AI आपको आना चाहिए. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए हर स्ट्रीम में AI का इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है और हर स्टूडेंट को इरेस्पेक्टिव किस स्ट्रीम में पढ़ रहा है उसको AI आना ज़रूरी है. Very well said, sir. Okay, according to you, what skills will matter for future engineers? क्यूरियोसिटी. Curiosity. या क्यूरियोसिटी. अगर आप क्यूरियस हैं तो AI के ज़माने में सब सीख सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए. Yes. It is not important how much you know. It is important how smart question you ask. आप चैट GPT पे जाकर कितना स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर उसके हिसाब से आएगा. तो आप जितने क्यूरियस हैं, क्यूरियोसिटी है आप में कि मुझे ये जानना है, Yes. तो वो बताने वाले बहुत हैं. पहले तो आपको जानना है क्यूरियोसिटी, परंतु आपको ये नहीं पता तो पूछिए किससे जाकर. हमारे तो नेटवर्क में है ही नहीं कोई भी, हमारे तो पेरेंट्स की फैमिली में कोई है ही नहीं जो ये बता सके, या फ्रेंड सर्कल में नहीं है. तो पहले आपके पास लिमिटेशन थी, आज तो आपके पास मोबाइल है. मोबाइल में जेमिनाई है या चैट GPT या क्लाउड है. आपको जो क्वेश्चन जिस तरीके से आता है और आप लिखना नहीं चाहते तो बोल कर पूछ लीजिए. तो दैट्स अ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आपको अगर ये स्किल है तो बाकी सब सॉर्टेड है. Okay, sir. What makes Career Point the right choice for the students who want strong placement and real industry experience? सी
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी क्यों राइट चॉइस है उसके मैं आपको मल्टीपल रीज़न बताता हूँ. पहला, द मैनेजमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द रिलेवेंट एजुकेशन. व्हेन आई से रिलेवेंट एजुकेशन, आवर करिकुलम इज़ ऑलवेज रिमेन अपडेटेड. हम हर साल अपने करिकुलम को एज पर इंडस्ट्री नीड बदल देते हैं और उसको रिलेवेंट कर देते हैं. सो व्हाट यू आर लर्निंग टुडे इज़ गोइंग टू बी इज़ यूजफुल फॉर यू by the time you graduate. That's one. Second reason is that Career Point University is being promoted by the people who've been in education for more than 35 years. जैसे मैं खुद IIT से ग्रेजुएट हूँ, हार्वर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, हैंड ऑन ट्रेनिंग. मैंने खुद ने पढ़ा है क्लासेस में, 17 साल तक मैं टीचिंग करी है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से लर्निंग होती है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है. एंड दैट्स व्हाट वी प्रैक्टिस इन आवर यूनिवर्सिटी ऑल्सो व्हाइल वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स. थर्ड, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन ए प्लेस लाइक कोटा, जो अच्छा शहर है, मेट्रो टाइप का नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप फोकस है, कल्चरली स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट का इकोसिस्टम है. शहर ने 30 सालों से लाखों बच्चों को कोटा में बुलाया है और उनको पढ़ाया है. तो आप अगर लर्न करना चाहते हैं तो आपको ऐसे शहर में होना चाहिए जहाँ पर लर्निंग का इकोसिस्टम है. आप अगर मेट्रो में चले जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन के अलावा तरह तरह की इश्यूज़ हैं जो शायद आपको डिविएट कर देते हैं. दैट्स व्हाई कोटा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस प्लेस टू बी टू परस्यू योर एजुकेशन. एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, की क्या वैल्यू आप लेकर निकल रहे हैं. आप अच्छा पढ़ लीजिए, अच्छा समझ लीजिए, बहुत अच्छा आपको AI आता है, परंतु अगर आप कल्चरली आपके पास वैल्यू नहीं है तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी. वी ऑल्सो फोकस ऑन दैट. तो दैट्स वाई द कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी द राइट चॉइस. सो क्योंकि केवल ये नहीं होता कि मेट्रो में एक बहुत बड़ा कैंपस बना रखा है और 5 स्टार टाइप का कैंपस है आपका, तो आपको वहाँ वाव फैक्टर आएगा. हो सकता है 5 स्टार कैंपस आपको ऑफर न करें, बट हम आपको एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं, हम कल्चरली बहुत अच्छे आपको सिस्टम में रखते हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ताकि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए आपका कि आपको ज़िंदगी भर सफलता मिले. Very well said, sir. Okay, sir. So we are done with question, and now we will play a rapid fire round. I'll ask you some question, and you have to give me answers in a rapid way. So the first question is, one AI tool every student should start using today. To start with Claude. Okay. Coding or communication, what is more important? 50-50. Okay. One habit that can make students successful during college I life. said earlier, curiosity. Okay. Why should students choose Career Point University for BTech? To get lifelong success. Okay, sir. We are done with the rapid fire session. Thank you so much, sir. Pleasure. Thank you.